आप इधर आ जाओ। جی السلام علیکم. کافی دیر ہوا ہے جب سے پچھلے ہمارا انٹریکشن ہوا، تو میں آپ سب کا شکر گزار بھی ہوں اور خوش بھی ہوں کہ مجھے موقع ملا ہے پھر سے سکھر آنے کے لیے. آج ہمارا خورشید شاہ صاحب سے NICVD میں طبیعت پوچھنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. آپ سب کو پتہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب آج تک اس سلیکٹڈ حکومت کا سیاسی قیدی ہے. آج تک جو یہ 10 مہینے سے ناانصافی آپ سب کے سامنے ہو رہا ہے، جہاں شاہ صاحب اریسٹ ہو جاتے ہیں اور اریسٹ ہونے کے بعد جو انویسٹیگیشن ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. آج تک ہمارا سلسلہ جو کورٹس میں چل رہا ہے اور رول آف لاء پہ ہم یقین تو رکھتے ہیں اور امید آج بھی رکھتے ہیں کہ انصاف ہوگا، لیکن سوال ضرور پوچھتے ہیں. سوال بھی پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا ہے اور ایسا کیوں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا خورشید شاہ، وہ شاید واحد نیشنل اسمبلی رکن ہے جو اب تک اس کو نہ ہمیں بیل ملا ہے اور نہ یہ کیس جو ہے یا انویسٹیگیشن جو ہے وہ پورا ہوا ہے. اب تک وہ انکوائری چل رہا ہے. تو ہم اپیل کرتے ہیں جوڈیشری سے کہ جو پاکستان میں قانون ہے وہ سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، اور جو نیب اور PTI کا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اس کو ہم عدلیہ کی طرف دیکھتے ہیں. پوری دنیا میں آپ عدلیہ کی طرف دیکھتے ہو انصاف ملنے کے لیے، اپنا حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے. اور خورشید شاہ صاحب نے اپنا پورا زندگی اسی جمہوریت اور اسی رول آف لاء کے لیے محنت کیا ہے، جد و جہد کیا ہے، جیل گیا ہے. اور آج جب خورشید شاہ صاحب کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی امید کرتی ہے کہ اپنا جوڈیشری اور اپنا اعلیٰ عدلیہ، اپنا آزاد عدلیہ، جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے جد و جہد کی، جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن شہید ہوئے، وہ آج ہمارے ساتھ انصاف کریں گے. اور جلد از جلد خورشید شاہ صاحب کو ایٹ لیسٹ جو اس کا بیل کا حق ہے، جو ہر پاکستانی کا حق ہونا چاہیے، کہ جب تک آپ کنوکٹڈ نہیں ہو، جب تک آپ کے اوپر جو کیس چلا رہے ہیں آپ کنوکٹڈ نہ ہو، تب تک آپ کو اپنا سارے حقوق ملنا چاہیے. ورنہ ایسے لگے گا کہ ہمارے اوپر سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے حکومت کو، PTI کی سلیکٹڈ حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے اپوزیشن ممبران سیاسی انتقام کے نشانے بن رہے ہیں. اور جو الزامات رانا ثناءاللہ صاحب نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ نیب پہ ڈالے ہیں، ناٹ نیب پہ، PTI کی حکومت پہ ڈالے ہیں. PTI کی حکومت پہ الزام ڈالے گیا ہے کہ وہ نیب کو بلیک میل کر رہے ہیں، نیب چیئرمین کو بلیک میل کر رہے ہیں. اور پاکستان میں بلیک میل ایک کرائم ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت وقت وزیر اور ان کے جو ساتھی جو چینلز ہیں وہ مل کے جو نیب چیئرمین ہے اس کو بلیک میل کر کے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز چلا سکے، یا میڈیا مالکان کے خلاف جیسے جیو کا امیر شکیل الرحمان کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ سلسلہ قابل مذمت ہے، ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم بھی اپنے عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ انصاف ہو. اس کے علاوہ میں نے صرف آج کے پریس کانفرنس میں ایک بڑا اہم نیشنل ایشو آپ سب کے سامنے لے آنا تھا، اور وہ ہے ایک جو سیکرٹ آرڈیننس PTI کی حکومت نے پیش کیا، اور نہ اپوزیشن جماعتیں کو بتایا گیا، نہ پارلیمان کو، نیشنل اسمبلی کو، سینٹ میں اعتماد میں لایا گیا، نہ پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لایا گیا. اور یہ آرڈیننس ہے یہ جو آرڈیننس نکالا گیا ہے مئی میں نکالا گیا، اینڈ دی آرڈیننس از کالڈ دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن آرڈیننس.
تو یہ آرڈیننس کیا ہے؟ یہ ہے آرڈیننس کلبھوشن یادو کے لیے. یہ کلبھوشن یادو کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے حکومت نے یہ آرڈیننس انٹروڈیوس کیا ہے، اور یہ آرڈیننس انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ہے. اب کیسے؟ اب آرڈیننس کا ٹائم بھی گزر گیا ہے، ٹائم فریم بھی گزر گیا ہے. نیشنل اسمبلی آف پاکستان، سینٹ آف پاکستان مسلسل مل رہا ہے، جون سے ہم مل رہے ہیں، اور یہ آرڈیننس ہمارے سامنے نہیں لے کر آئے. اور ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، جہاں تک ہمیں پتا ہے کہ یہ جو ریلیف، یہ جو کلبھوشن آرڈیننس ہمارا سلیکٹڈ آیا، اس کا فائدہ لینے بھی کلبھوشن یادو نے انکار کر لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلیکٹڈ حکومت نے جتنے کیٹاسٹرافک ڈیسیجنز لیے ہیں وہ تو ماضی میں آپ کے سامنے ہیں، مگر یہ ایک انپریسیڈنٹڈ موو ہے جو ہمارا سمجھ سے باہر ہے. اگر اس قسم کا آرڈیننس کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی اسٹریٹجی کی وجہ سے یا کوئی بھی وجہ سے لانے کی ضرورت تھا بھی صحیح، تو اس حکومت کا ذمہ داری تھا کہ اپوزیشن پارٹی سے بات کی جائے. اس حکومت کو پاکستان کے عوام کو بتانا چاہیے تھا، سمجھانا چاہیے تھا، ان سے اجازت مانگنا چاہیے تھا کہ ہم یہ قدم اٹھانے جا رہے ہیں. آج تک مجھے پتا ہی نہیں ہے، ہمیں پتا نہیں کہ حکومت وقت نے کیوں ایک انڈین سپائی جو مان چکا ہے کہ میں سپائی کر رہا تھا پاکستان میں. پی ٹی آئی نے اپنے الیکشن مہم اور الیکشن مہم سے پہلے اپنا پارٹی پالیسی اس میں پاکستان کے عوام کو بتایا تھا، اور آج جب وہ حکومت میں ہے، پاکستان کے عوام اپنا زندگی اور صحت کے فکر میں ہے، اپنا معاشی صورتحال کے فکر میں ہے، اور ہمارا پیٹ پیچھے یہ سلیکٹڈ حکومت کلبھوشن یادو کے لیے آرڈیننس اٹھاتے. یہ آپ مجھے بتائیں، سکھر کے جرنلسٹ مجھے بتائیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت ہوتا، پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت اس قسم کا آرڈیننس لے کر آتے ہیں، آپ اب تک ہمارا جینا حرام کر دیتے. دفاع پاکستان کونسل جو ہے، ان کا دھرنا چل رہا ہوتا ہے اسلام آباد میں. ہم مطالبہ کرتے ہیں پی ٹی آئی حکومت سے. رضا ربانی صاحب نے سینٹ آف پاکستان میں اس ایشو کو اٹھایا ہے، نیشنل اسمبلی میں میرے ممبرز اٹھانے والے ہیں. ہم آپ کے سامنے آپ کے تھرو مطالبہ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت اس بات کا جواب دے کہ ایک، کیوں آپ نے کلبھوشن یادو کے لیے یہ آرڈیننس انٹروڈیوس کیا تھا؟ کیا وجہ تھا کہ آپ نے کلبھوشن یادو کو ریلیف پہنچانا تھا؟ دو، اگر آپ نے یہ کرنا تھا، آپ نے پاکستان کی خلاف آئین کی خلاف ورزی اور لا کی خلاف ورزی کیسی کی ہے کہ اگر آرڈیننس آتا ہے تو اس کا ٹائم فریم کے دوران نیشنل اسمبلی آف پاکستان، سینٹ آف پاکستان میں پیش ہونا چاہیے، اور یہ آرڈیننس نہ پیش ہوا ہے. اور تین، کیا بھارت نے یا کلبھوشن یادو نے جو آپ نے ریلیف دیا، جو آپ نے آرڈیننس نکالا، کیا اس آرڈیننس کے فائدہ لیا ہے یا نہیں؟ ان تین سوالات کا جواب دینا حکومت کا فرض ہے. حکومت کو اپنا ایکسپلینیشن دینا پڑے گا. اس پہ ہم اکاؤنٹیبلٹی نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اس پہ کوئی معافی کا گنجائش نہیں ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک اور ریزن ہے کہ ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم اس ملک کا وزیر اعظم نہیں رہنا چاہیے. آپ سب کا بہت شکریہ، اور میں آپ کا سوالات کا جواب دیں. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ کووڈ کے بعد کا جو پاکستان ہے وہ بالکل ہی تبدیل پاکستان ہے. اس میں لوگ بھوک کا شکار ہو رہے ہیں، اس میں کرائم بہت زیادہ بڑھ رہا ہے وہ بھوک کی وجہ سے. نہ صرف بلکہ پورے پاکستان کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر کرائم جو ہے وہ ڈبل سے 3 گنا زیادہ بڑھ گیا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کی کوئی پرائرٹی نظر نہیں آتی کہ عام غریب بندوں کو کس طرح وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور نہ وہ کووڈ سے ہمیں بچا پا رہے ہیں، نہ ہمیں وہ بھوک سے بچا پا رہے ہیں.
तो इस पर अपोजिशन मिलकर कोई एक मुनज़्ज़म तहरीक की सूरत में क्यों नहीं आई? बहुत थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। एक तो जैसे आप कह रहे हो, पाकिस्तान की अवाम इन्हीं चीज़ों के फ़िक्रमंद है और चाहते हैं कि अपनी हुकूमत इन्हीं चीज़ों पे तवज्जो दे कि पाकिस्तान के अवाम को उनकी ज़िंदगी को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएंगे, उनका सेहत को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएंगे, उनको माशी सूरत हाल को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिलाएंगे, उनको रोज़गार कैसे पहुँचाएंगे। हमारा उम्मीद ये था कि हुकूमत इन चीज़ों पे फोकस कर रहा था, उनको फोकस इन्हीं चीज़ों पर करना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर रहे थे? इन चीज़ों पे फोकस करने के बावजूद वो हमारे पीठ पीछे कुलभूषण यादव के लिए ऑर्डिनेंसेस निकाल रहे हैं। जहाँ तक भूख की सवाल है, भूख पाकिस्तान में कोविड से पहले भी था, गुर्बत पाकिस्तान में कोविड से पहले भी था, गुर्बत में इजाफा हो रहा था कोविड से पहले, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा था कोविड से पहले, भूख में इजाफा हो रहा था कोविड से पहले। भूख इस हुकूमत के सिर्फ मसला बन गया जब कोविड आ गया, और वो इसलिए कि वो ना कोविड पे आपका ख्याल रखना चाह रहे हैं, और जैसे आप कह रहे हैं उन्होंने ना आपका भूख का और आपका गुर्बत का ख्याल रखा है। पूरी दुनिया भर में अब नज़र आ रहा है कि जहां आप कोविड पे काबू कर चुके हैं, जहां आप इस पैंडेमिक में अपने अवाम का सेहत को बचा दिया है, अपना नुकसान को कम किया है, वहाँ मुआशी नुकसान कम रहा है। अगर आप उन ममालिक का एग्जाम्पल्स उठाए जहाँ उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कदम नहीं उठाए या कन्फ्यूजन के शिकार थे, जहाँ उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी की तरफ और लॉकडाउन करने से इनकार किए, चाहे वो स्वीडन हो चाहे वो ब्राज़ील हो, वहाँ उनको उनका अवाम का ज़िंदगी और सेहत तो को नुकसान हुआ, ज़्यादा नुकसान हुआ कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, लेकिन साथ साथ वहाँ का मईशत को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। जितने ज़्यादा लोग बीमार हो जाएंगे, जितने ज़्यादा लोग फौत हो जाएंगे, उतना ही ज़्यादा नुकसान आपका मईशत पे होता है। वो इसलिए कि अगर एक फैमिली में से एक अर्निंग मेंबर को कोविड हो जाता है, खुदा न खास्ता वो फौत हो जाता है, तो पूरा ख़ानदान पे असर होता है। सिंध में हमने कोशिश किया, हमारा इंटेंशन है कि जिसको भी ज़रूरत पड़े, अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं हैं, आप इलाज अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज भी करना चाहते हैं, टेस्ट भी करवाना चाहते हैं। लेकिन वैसे जब एक बीमारी या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ता है, आप सेहतियाब भी हो जाते हो, इतना ख़र्चा हो जाता है कि मुआशी नुकसान तो होता ही होता है। इसीलिए हम शुरू दिन से कह रहे हैं इनके कि 100 साल बाद ये वबा आई है, ये आम क्राइसिस नहीं है। इसके लिए हुकूमत को अवाम की ज़िंदगी और सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कदम उठाना पड़ेगा, और साथ साथ मुआशी सूरत हाल और गुर्बत का के लिए उनका प्लानिंग करना पड़ेगा। मगर दोनों फ्रंट्स पे नाकाम रहे हैं। जहाँ तक अपोजिशन की बात है, पहले दिन से, हुकूमत के आते हुए भी पहले दिन से, कोविड के आते हुए भी पहले दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सफ़े अव्वल का किरदार रहा है, और हम इनको चैलेंज करते रहेंगे। हम इनको फ्री राइड नहीं दे सकते, हम पाकिस्तान के अवाम को इस सूरत हाल में इस तरीके से नहीं देख सकते, और इंशाअल्लाह ताला अपोजिशन का जो कोशिश है, जो एफर्ट है, हम इसमें कामयाब नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी जो हमेशा मुफाहमत की सियासत पर यकीन रखती है, और मुफाहमत की सियासत को उसने मुल्क को फ़रोग़ भी दिया है, 10 साल आपने पूरे भी किए हैं, लेकिन वज़ीर आज़म जो है वो किसी भी सूरत दोनों जमातों से मुफाहमत करने को तैयार नहीं है। 2 साल गुजर गए हैं, आप समझते हैं अगले 3 साल कैसे गुजरेंगे? वज़ीर आज़म मुफाहमत की बात तो है ही नहीं। ये वज़ीर आज़म बनने को तैयार नहीं। इमरान खान साहब इस बात पे खुश है कि वो PTI का और ट्विटर का और फेसबुक का वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने को तैयार ही नहीं है। अगर आपने पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना, तो फिर जब पाकिस्तान पे क्राइसिस आ जाते हैं, आपको उस पूरा कौम का लीडर बनना पड़ता है, पीपल्स पार्टी का भी कारकुन के लीडर बनना पड़ता है, नून लीग के कारकुन के लीडर बनना पड़ता है, पूरा मुल्क का वज़ीर आज़म बनना पड़ता है। लेकिन चाहे हमारा कश्मीर का इशू हो, इकनॉमिक इशू हो, या कोविड का पैंडेमिक हो, ये वज़ीर आज़म
सिर्फ और सिर्फ ट्विटर और फेसबुक का वज़ीर आज़म रहने में खुश होता है, पाकिस्तान के अवाम को लावारिस छोड़ता है, कश्मीर के अवाम को लावारिस छोड़ता है। और ये पहला वज़ीर आज़म है पाकिस्तान की तारीख में, सिलेक्टेड आए, इलेक्टेड भी आए, कमज़ोर भी आए, मजबूत भी आए, लेकिन ये वो पहला वज़ीर आज़म है जो कश्मीर पे भी पाकिस्तान को एक कौम बनने में नाकाम रहा। और मैं समझता हूँ इससे एक और ज़्यादा बड़ा नाकामी क्या हो सकता है कि वज़ीर आज़म कश्मीर पे भी पाकिस्तान को इकट्ठा नहीं कर सकता, कि वज़ीर आज़म कहता है नेशनल असेंबली ऑफ फ्लोर पे कि फॉरेन पॉलिसी मेरा सबसे बड़ा कामयाबी है, फॉरेन पॉलिसी इसका सबसे बड़ा कामयाबी है, इसलिए कि वो कुलभूषण यादव को ऑर्डिनेंसेस दे रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम को लीडर नहीं बन रहा है, पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं निकाल रहे हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है जहां आपका वज़ीर आज़म में ना वो सलाहियत है, ना वो अहलियत है कि वो आपका मुल्क का क़ियादत कर सके। और जब सिलेक्शंस होते हैं, जब धांधली होता है, तो ये नतीजा निकलता है, अवाम को वो नुकसान उठाना पड़ता है, अवाम पे वो बोझ डाला जाता है, और आम सूरत हाल में वो चल भी जाता है। लेकिन फिर जब एक ग्लोबल पैंडेमिक आता है, जब कश्मीर जैसे मसला आ जाता है, तो आपका कॉन्सिक्वेंसेस आप सबके सामने हैं। पाकिस्तान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। हुकूमत है और इस वक्त संगीन नौयत के इल्जाम भी सामने आ रहे हैं, कोई नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं, तो क्या अपोजिशन समझती है कि अब इस बार फिर पाकिस्तान को 1 मिनट के तर्ज पर लेके जाने की कोशिश की जा रही है, या अपोजिशन नाकाम हो गई है? क्या देखते हैं? जहाँ तक 1 यूनिट की बात है, मैं बिल्कुल समझिए, तो पहले दिन से पिछले साल जब मैं आपके सामने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तब भी मेरा वो बात था। उस साल, उससे पहले एक साल जब मैं इसी मौसम में आपका इलेक्शन के लिए यहाँ आया था, मैं यही बात कर रहा था कि आपकी 1973 की आइन मेरा नहीं है, हम सबका है, पाकिस्तान का है, आपका है। इसकी आइन के ख़िलाफ़, आपका NFC अवार्ड के ख़िलाफ़, आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ख़िलाफ़ ये साजिश है, और ये सेलेक्टेड इसलिए ले आया जा रहा है ताकि इन पे हमले की जा सकती है। और इसका जो अब पहले दिन से लेके आज तक जो रवायत रहा है, वो ऐसे ही नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान को वापस उस 1 यूनिट फॉर्मूला पे लेके जाना चाह रहा है, जिससे पाकिस्तान को माजी में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था। आज भी हम समझते हैं कि जो हमले NFC पे हो रहे हैं, जो वज़ीर आज़म अपना किरदार से, अपना हुकूमत की डिसीजन से और अपने अल्फाजों से जो हमले करते हैं हमारे आइन पे, अपने ही वज़ीर आले को कहते हैं, अपना ही जो चीफ मिनिस्टर्स है, मैं तो कहता हूँ कि सिलेक्टेड है, वो तो समझता है कि इलेक्टेड है ना, वो कहता है कि चीफ मिनिस्टर्स डिक्टेटर्स है। वो एक पैंडेमिक के दौरान जहां पाकिस्तान के अवाम का ज़िंदगी और सेहत को बचाना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ था, जहां PTI की हुकूमत को बाकी सब इख्तलाफात को छोड़ के, बाकी सब पार्टिजान इश्यूज़ को छोड़ के आपका ज़िंदगी और सेहत बचाने में और मुआशी सूरत हाल का तहफ़्फ़ुज़ करने में एफर्ट्स लगाना चाहिए था, तब वो क्या कर रहे थे? NFC अवार्ड को कैसे रोल बैक करना है, 18th अमेंडमेंट को कैसे रोल बैक करना है, और आज भी वो आपको 1 रुपया देने को तैयार नहीं है आपका कोविड के लिए, 1 रुपया देने को तैयार नहीं है आपको एक हॉस्पिटल बनाने के लिए, 1 रुपया देने को तैयार नहीं है आपका टेस्ट करवाने के लिए, और ऊपर से आपका शेयर काटना चाहते हैं, ऊपर से आपका जो सेहत के लिए, जो तालीम के लिए पोर्शन बचता है, उससे वो पैसा मज़ीद काटने चाहते हैं। और हम आज इस मुश्किल सूरत हाल में हैं जहां वो PTI की नाकामी की वजह से, PTI की टैक्स कलेक्शन में नाकामी की वजह से सिंध को 229 बिलियन को नुकसान हो चुका है, और हमें 229 बिलियन रुपीस कम मिला है।
पिछले साल आपको याद होगा मैं कह रहा था 116 बिलियन रुपीस आपको कम दिया गया, और इस 116 बिलियन रुपीस पे हम कितना सेहत और तालीम पे खर्च कर सकते थे। आज कोविड में 229 बिलियन रुपीस से में कितना टेस्ट करवा सकते थे, कितना हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स, कितना इंटेंसिव केयर यूनिट्स, कितना डॉक्टर्स, नर्सेज, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का स्टाफ, कितना अपना वो काम इसी रकम से हो सकता था। और ये नुकसान सिर्फ सिंध के साथ नहीं हो रहा, पंजाब को भी पीटीआई हुकूमत की नाकामी की वजह से, पीटीआई की टैक्स रेवेन्यू जनरेशन में अपना ही टारगेट्स मिस करते हुए पंजाब को भी 480 बिलियन रुपीस का नुकसान उठाना पड़ रहा है एक ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान। और उसी वक्त उसी पैंडेमिक के दौरान आपका सिंध हुकूमत का जो टैक्स रेवेन्यू है वो पैंडेमिक के दौर में भी उसका इजाफा हुआ है। तो ये बताता है कि असल में 18th अमेंडमेंट और एनएफसी वो कामयाब है। सूबाई हुकूमतें, ना सिर्फ सिंध, बाकी सूबाई हुकूमतें ने अपना टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा किया है। अगर कोई कमी हुआ है, नाकामी हुआ है, फेलियर हुआ है, तो एफपीआर की तरफ से, इस्लामाबाद की तरफ से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए हैं। और आपका शेयर काटने के बजाय, सिंध का, बलूचिस्तान का, केपी से पैसा लेने के बजाय हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, जहां आप टैक्स कलेक्शन में इजाफा करें, जहां सबका शेयर में इजाफा हो और वफाक को भी उतना मिले जिनका उनका हक है, और पाकिस्तान के लिए सेहत के लिए, एजुकेशन के लिए उनका हक भी दिया जाए। पीटीआई की हुकूमत तो कोविड के शुरू दिन से हर उस इशू पे बात करना चाह रहा है जो कोविड रिलेटेड नहीं है, जो अवाम के असल मसाइल से रिलेटेड ना हो, और वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अवाम को डिस्ट्रैक्ट करने से। मुझे नहीं पता ये क्यों इस इशू को उठाया गया, शायद इसलिए कि उन्होंने उसी वक्त जब ये इशू चलाने की कोशिश कर रहे थे वो कुलभूषण यादव के लिए ऑर्डिनेंस निकाल रहे थे, और वो नहीं चाह रहे थे कि और आप और मैं ये सवाल पूछे कि ये कैसे मुमकिन है कि एक वज़ीर आज़म कुलभूषण यादव के लिए ऑर्डिनेंस निकाले, और कुलभूषण यादव का ये जो ऑर्डिनेंस है उसके लिए आप इजाज़त भी नहीं मांगे नेशनल असेंबली, आप इजाज़त नहीं मांगे सेनेट ऑफ पाकिस्तान से। इससे बड़ा I don't think there can be a harder, stronger accusation against the Prime Minister and the government of the day. इस पर जो आपने रेस किया, ये JIT जो खेल रहे हैं, वैसे इतना तफसील पे बात नहीं करना चाहता, ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये तो किरदार कशी और मीडिया मुहिम चलाते हैं, ये लियारी के अवाम के ख़िलाफ़ साजिश है, ये लियारी के ख़िलाफ़ साजिश है। जो कराची में रहने वाले हैं उनको तो पता है कि जब पूरा कराची जल रहा था तो आप लियारी में जाके पनाह लेते थे। अगर मई 12 हुआ है, अगर कराची के हर सड़क में, हर गली में कराची के अवाम ने अपने बेटे के लाशें उठाई है, अगर हमारा शहर हर हफ्ता बाद बंद हो जाता था, पूरा पाकिस्तान की मईशत रुकवा जाता था, तो वो क्राइम लियारी से नहीं होता था, वो कोई और करते थे। उनका चेहरा साफ करने के लिए लियारी के और गैंगस्टर्स है, लियारी में भी है, पूरा पाकिस्तान में क्रिमिनल्स होते हैं। क्रिमिनल्स नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और कानून को अपना कोर्स लेना चाहिए। लेकिन पंजाब का भी एक छोटू गैंग था, क्या इतना वो टीवी पे चला? हर दूसरा डिस्ट्रिक्ट में कोई गैंग है भाई। क्या फॉल्स इक्विवेलेंसी वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लियारी का गैंगस्टर्स
उसामा बिन लादेन से तो कम्पीट नहीं कर सकते ना। उसामा बिन लादेन जो किसी शहर में किसी घर में रह रहा था, जिसका JIT आप और मैंने आज तक नहीं देखा, लियारी का गैंगस्टर्स या उसामा बिन लादेन का तो कंपैरिजन नहीं होता। लियारी का गैंगस्टर्स और ये एहसानुल्लाह एहसान जो इस हुकूमत ने निकाला है, APS के कातिलों जो हुकूमत के कैद में था और PTI की सिलेक्टेड हुकूमत आने के बाद उसको छुड़वा दिया। और अब अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के खिलाफ करेंगे तो एहसानुल्लाह एहसान की तरफ से धमकी आएगा। ये फॉल्स इक्विवेलेंसी पे मैं एतराज करता हूं और मैं समझता हूं कि लियारी में जो गैंगस्टर्स थे और जो असल गैंगस्टर्स हैं और जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, उनको क्रिमिनल एलिमेंट्स की हद तक रूल ऑफ लॉ चलना चाहिए। लेकिन ये ड्रामा जो आपके टीवी स्क्रीन पे चलता है कि कराची का सबसे खतरनाक जो चीज था वो लियारी के गैंगस्टर्स नहीं थे, वो 90 का गैंगस्टर्स थे। और 90 का गैंगस्टर्स हमें भूलना चाहिए जो आज तक हुकूमत कर रहे हैं इमरान खान के साथ। उसामा बिन लादेन हमें भूलना चाहिए, एहसानुल्लाह एहसान हमें भूलना चाहिए और पूरे पाकिस्तान को दिखाना चाहिए कि लियारी के गैंगस्टर्स सबसे बड़े दहशतगर्द थे। मैं समझता हूं कि ये लियारी के साथ, कराची के साथ नाइंसाफी है और इस पे हमारा उसको जहाँ तक हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, अच्छी बात है कि अब कोरोना से अगर आप कह रहे हो सेहतियाब हो चुका है और हम सब के लिए सियासत में साथ हो, हमारे मुखालिफ भी हो, दुआ करेंगे कि उनको कभी कोरोना ना लगे और अगर लगे तो सेहतियाब हो जाए, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब अब सेहतियाब है। लेकिन अगर शाह महमूद कुरैशी सेहतियाब है तो उसको आज जवाब देना पड़ेगा कि कुलभूषण यादव के लिए उसने क्यों ऑर्डिनेंस निकाला। और अगर शाह महमूद कुरैशी साहब रेमंड डेविस के नाम पे हुकूमत से निकल सकता है, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब रेमंड डेविस पे इतना एहतजाज करके पता नहीं क्या क्या कर सकता है, तो अब क्या कर रहे हैं हुकूमत में? क्या वो साथ था? शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कुलभूषण यादव के लिए ये ऑर्डिनेंस निकाला है? साथ नहीं था तो फिर हमें जवाब दे। 5 साल मुकम्मल करने की बात जो है, हम हमेशा चाहते हैं कि पार्लियामान अपना 5 साल पूरा करे। जमहूरियत के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि पार्लिमानी सिलसिला चलता रहे। लेकिन जो हमारा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, जो ज़बरदस्ती हुकूमत उस हुकूमत दिलवाया गया और अभी ज़बरदस्ती से उसका हुकूमत चल रहा है, ज़बरदस्ती से उसका इत्तेहादी और नाराज़ नुमाइंदे साथ बांधे गए हैं, ये ज़्यादा देर तक इकट्ठा नहीं रह सकेंगे। दिस इज़ अ हाउस ऑफ कार्ड्स, इट विल फॉल, इट इज़ मेंट टू फॉल, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और हम उम्मीद करते हैं कि जमहूरी हल निकलेगा। इसलिए हम समझते हैं कि अब पाकिस्तान के अवाम की जो मसाइल है उसका हल सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरियत में है, और इसलिए जमहूरी और अवामी हुकूमत ले आके हम पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। थैंक यू एवरीबडी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लेकिन आप नेक्स्ट टाइम प्लीज़ जो कैमरामैन का भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और प्रेस क्लब का जिम्मेदारी होना चाहिए कि SOPs जो है कैमरामैन के लिए भी ज़रूरी है। इनका ख्याल रहे मेरा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस। थैंक यू।